کیا کہ آپ خدا کے کلام کی منادی کریں. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. تھینک یو سسٹر جی، گاڈ بلیس یو. آپ کا مائک بند ہے، مائک آن کر لیجیے گا. یسوع مسیح کے جلالی و برکت اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. جی آپ سب ٹھیک ہے اور میری آواز آپ کو پراپر آ رہی ہے؟ جی 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 سسٹر جی. میں سب سے بڑھ کر اپنے خداوند یسوع المسیح کی شکر گزار ہوں کہ میرے خدا نے، میرے باپ نے آج مناسب جانا کہ میں اس کی آواز کو آپ تک پہنچانے والی بنوں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ خدا کا پاک روح ہے. انسان کی سوچ بے شک وہ نہ ہو، لیکن خدا سارے کام جانتا ہے کہ میں نے کیا کرنے ہیں اور کیا نہیں. خدا ترتیب کرنا جانتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے. میں شکر گزار ہوں خدا کے بندہ، خدا کے خادم پاسٹر ترسیم صاحب کی اور شلوک ٹی وی کی ساری ٹیم کی، کہ جنہوں نے آج خدا کے کلام کو سننے کے لیے مجھے دعوت دی کہ میں خدا کے کلام کو آج آپ تک پہنچاؤں. یہ کوئی خدا کا پلان ہے اور میں شکر گزار ہوں آپ سب کی بھی، جتنے آن لائن سن رہے ہیں، جتنے یوٹیوب پر آن لائن ہیں، جتنے اس وقت سب ہم آن لائن ہیں. ہم سب خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت اب بھی ہے اور اس کا پیار نرالا ہے. کیونکہ وہ ہمارا خدا، ہمارا باپ، ہمارا رہنما، ہمیں زور دینے والا، ہمیں قوت دینے والا ہمارا رب ہے، جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میرے عزیزو، آج ہم کلام میں سے کچھ اہم باتیں خداوند کے پاک روح کی مدد سے سیکھیں گے، کیونکہ ہمارا خدا جو بڑا مہربان ہے وہ آج ہم سے بولنے کو ہے. کیونکہ جب ہم پرستش کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں، لیکن جب کلام ہوتا ہے تو خدا اپنے لوگوں سے بولتا ہے، خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے، کیونکہ خدا ہی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. کیونکہ خدا ہی ہمارا خدا، ہمارا مہربان، ہمیں زور دینے والا خدا ہے. اور میرے عزیزو، آج ہم سیکھیں گے ایمان کے تعلق سے کہ ایمان کیا آج تک کبھی کسی نے یہ دعا کی ہے کہ خدا ہمارے ایمان کو بڑھا؟ کیا آج تک کسی نے یہ بات خدا سے دعا کی ہے کہ خدا ہمارے ایمان کو بڑھا؟ کیوں ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے، ہمیں ایمان میں ترقی کرنی چاہیے، ہمیں ایمان میں اور مضبوط ہونا چاہیے؟ کیوں ہمیں یہ ضرورت ہے؟ کیونکہ ایمان ہی کے سبب سے انسان مضبوط ہوتا، ایمان ہی کے سبب سے انسان ترقی کرتا، ایمان ہی کے سبب سے انسان وہ چیزیں جو اس کی زندگی میں ناممکن ہے ان کو لینے کی قدرت خدا انہیں دیتا ہے. خدا کے رسولوں نے بھی کہا، انہیں کیوں ضرورت پڑی اس بات کی کہ خدا ہمارے ایمان کو بڑھا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دعا کریں اور کہیں کہ خدا ہمارے ایمان کو بڑھا. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اگر تم میں رائی کے دانے جتنا ایمان، وہ نہیں کہ جو ہم ایمان رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں میرا بڑا ایمان ہے، میں بڑے ایمان سے خدا سے کہتا ہوں اور ہو جاتا ہے، ممکن ہے ہو جاتا ہے. لیکن اگر تم میں رائی کے دانے جتنا ایمان ہو تو اس پہاڑ سے کہو تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. ایمان کو کیوں بڑھانے کی ضرورت ہے؟ ہمارے ایمان کیوں، جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو کیوں ہمارے ایمان جو ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ایمان مضبوط نہیں ہے. ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے. جب مصیبت آتی ہے تو ایمان کیوں کمزور پڑتا؟
کیونکہ ہم نے اس لیول پر ایمان کو اپنی زندگی میں لیا ہی نہیں جیسے میرا اور آپ کا یسوع چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان بڑھے اور ہم مضبوط ہوں۔ آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے نکالیں گے۔ مقدس لوکا طبیب کی انجیل، مقدس لوکا طبیب کی انجیل، اس کا 17 باب اور اس کی 5 آیت۔ Hallelujah, praise the Lord. لوکا کی انجیل کو پنجابی میں بھی لوکا کی انجیل، جی سر، اس کا 17 باب اور اس کی 5 جی سر، جی۔ اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا، آمین آمین آمین۔ یہ پنجابی میں بھی پڑھنی ہے بھائی صاحب؟ اگر کوئی اویلیبل ہے پنجابی میں خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب برکت کو رسید کریں۔ ہاللیلویا۔ خداوند یہاں پر لکھا ہے کہ اس پر رسولوں نے کہا کہ ہمارے ایمان کو بڑھا۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول بھی ایمان میں مضبوط نہیں تھے، انہیں ضرورت پڑ گئی کہ وہ کہیں کہ اے خدا ہمارے ایمان کو بڑھا۔ ہمارا ایمان کیوں کمزور ہے؟ ہمارا ایمان اس بائبل اس ورس کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کہیں کہ اے خدا ہمارے ایمان کو بڑھا۔ ایمان کمزور دھیان اور طرف ہو جاتا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، ہمارا ایمان اس لیول پر رہتا نہیں کہ ہم اس ایمان پر ٹک جائیں۔ مصیبت بڑی نہیں ہوتی بلکہ خدا اور ہمارا ایمان بڑا ہے، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ بڑا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں خدا جب جھیل پر رات کو کشتی کے اندر تھے اور کشتی میں تھے تو کیا ہوتا ہے کہ جب پترس کہتا ہے، جب یسوع مسیح کو وہ دیکھتا ہے کہ یہ پانی پر چل رہے ہیں تو اس کے دل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ میں بھی پانی پر چلنا چاہتا ہوں۔ جب وہ اس بات سے وہ اس بات کو ظاہر کرتا اور کہتا اور یسوع مسیح اسے کہتے کہ ہاں، وہ کہتا ہے میں بھی، اگر تو خدا ہے تو مجھے بھی کہہ کہ میں بھی اس پانی پر چلنا شروع کروں۔ تو یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ ہاں آ پترس اور چل۔ جب وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب جتنی دیر اس کا دھیان جناب مسیح پر لگا رہتا ہے تو وہ چلتا رہتا ہے، جب اس کا دھیان اس کا ذہن اپنی طرف آ جاتا ہے تو وہ پانی میں ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اس کا دھیان اپنے مسیح پر نہیں رہتا، اور وہ اپنے دل میں یہی سوچ رہا ہوگا ایک انسان ہوتے ہوئے کہ کاش یہ قوت مجھ میں بھی ہو کہ میں خود پانیوں پہ چلنا شروع ہو جاؤں۔ لیکن اس کا نظر، اس کے دھیان، اس کا دل جب مسیح کی طرف تھا، جب خدا کو دیکھ رہا تھا، جب وہ اپنے یسوع المسیح اور خدا کے بیٹے پر اس کا دھیان تھا، اس کا ذہن تھا، وہ خدا کے بیٹے پر اپنی نظریں لگائے ہوئے تھا، تو وہ پانیوں پر چل رہا تھا۔ جیسے اس کی نظر پیچھے ہوئی، جیسے اس کی نظر، اس کا دھیان، اس کا ذہن یسوع المسیح سے ہٹا اور وہ ڈوبنا شروع ہوا۔
क्यों? इसलिए कि उसका ईमान कमजोर पड़ गया, उसने उस पर अपनी नजर लगाना छोड़ दी। इसी तरह हम जब अपनी नजर पीछे कर लेते हैं, हम अपना ध्यान उससे हटा लेते हैं, तो फिर हमें क्या होती है, हमें हमारा ईमान मजबूत नहीं, हमारा ईमान कमजोर पड़ जाता है। खुदा के रसूल का भी ईमान कमजोर पड़ गया और वो फिर डूबना शुरू हो गया। और जब वो डूबना शुरू हुआ तो तब यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और उसे डूबने से बचा लिया। इसी तरह जब हम भी अपने यीशु को हाथ देते हैं ईमान के साथ, फिर वो हमें गिरने नहीं देता, फिर वो हमें संभालता और हमें मजबूत बनाता, क्योंकि हमारा खुदा ही मजबूत है। वो ऐसी चट्टान है जिस पर खुदा ने कहा अपना घर चट्टान, जो अपना घर चट्टान पर बनाता है वो कभी कमजोर नहीं पड़ता, क्योंकि ईमान ही के बलबूते पर हम अपनी बुलंदी को लेते हैं, हम बुलंदी पर जाते हैं। ईमान ही के वसीला से हम कमजोर नहीं पड़ते, ईमान ही के वसीला से इंसान की जिंदगियों में रिवाइवल आता है। इंसान ईमान ही के वसीला से यहाँ पर रसूल कह रहे हैं कि ऐ खुदा हमारे ईमान को बढ़ा, क्योंकि वो एक जगह पर मनाही करते हुए बदरूहें नहीं निकाल सके, क्योंकि उनमें ईमान की कमी थी, वो कमजोर पड़ गए थे, क्योंकि उनमें वो ईमान नहीं था जो यीशु अल मसीह चाहते थे कि ये ईमान इनके अंदर आए। और ईमान के बलबूते पर जब हम ईमान रखते हैं, तो जब हम फख्र से कहते हैं कि यीशु अल मसीह के साथ, यीशु अल मसीह के नाम से हुक्म देते हैं, तो जिंदगियों में रिवाइवल और तब्दीली आ जाती है, क्योंकि ईमान ही के वसीला से, क्योंकि ईमान नहीं तो इंसान कमजोर है, ईमान नहीं तो इंसान गिरता है, चोट खाता है, ईमान नहीं तो इंसान मुंह के बल गिरता, और जब उसे चोट लगती है फिर वो जिस तरह पतरस को लगी और वो डूबना शुरू हुआ, तो फिर उसका ध्यान दोबारा यीशु मसीह जनाबे मसीह की तरफ लगता है, तो फिर उसकी जिंदगी में बहार आ जाती है, मौसम बदल जाता है। और इसी तरह जब हम रूहानी तौर पर अपने ईमान को मजबूत करते हैं, तो हमारी जिंदगियों में भी रिवाइवल और हमारा मौसम भी बदलना शुरू हो जाता है, हमारी जिंदगियों में भी खुदा खुशहाली को ले आता। हमारा ईमान भी जब बढ़ता है तो हम कुव्वत पाते हैं। ईमान ही के वसीला से बात की गई है कि मैं तुम्हें अख्तियार दिए जाता हूँ, किनको? जिनका ईमान नहीं है, जो ईमान से हटे हुए हैं, क्या ये इख्तियार उनके लिए है? वो अगर कहें मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ निकलो, उनके दिल में ईमान नहीं है, दिल के अंदर कोई मबूद बसा हुआ है, तो जाएंगी नहीं मेरे अजीजों, हरगिज़ नहीं जाएंगी। जब हमारा यीशु अल मसीह पर हमारा ध्यान, हमारा ज़हन, अक्ल, हमारी सोच, हमारे दिल पर वही जनाबे मसीह राज करेंगे, तो तब हम कहेंगे यीशु अल मसीह के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूँ, तो वो बीमारी जाती रहेगी, वो कमजोरियां जाती रहेंगी। क्यों? कि हमारा ध्यान, जिस तरह पतरस का ध्यान जब तक यीशु अल मसीह पर लगा रहा तो वो चलता रहा, जब ध्यान हटा नहीं, ईमान कमजोर नहीं पड़ा, तो मेरे अजीजों वो चलता रहा। इसी तरह जब हमारा ईमान मजबूत नहीं होता और हम उसके नाम से भी कहें तो नहीं, क्योंकि हमारे दिल में कुछ और है, जबान पर कुछ और है, जहन में कुछ और है, हम तीन चीजों को लेकर जब फिरते हैं, हमारी जिंदगियों में वो काम नहीं होता। जब हमारे दिल में एक ही नाम होगा, हमारे जहन में, हमारे दिल में, हमारे ईमान में एक ही मजबूत नाम होगा, हम उस नाम से कुछ करने की कुदरत रखते हैं। हालेलुया! हम हर सब कुछ करने की कुदरत खुदा हमें देता है, क्योंकि हमारा खुदा पावरफुल है। खुदा चाहिए कि हम दुआ करें कि खुदा हमारे ईमान को बढ़ा, क्योंकि जब
कश्ती के अंदर तूफान आ गया, तो जब कश्ती डूबना शुरू हो गई, कश्ती पर लहरों से टकराने लगी, तो जब यीशु मसीह उस कश्ती के अंदर सो रहे थे, जब वो सो रहे थे, जब इंसान होते हुए नींद भी आ जाती है, क्योंकि वो मसीह हमारा खुदा जो है वो इंसान भी बना और खुदा का बेटा भी बनकर हमारी जिंदगी में आया। तब खुदा जो है वो जिंदगियों में दो तरह का काम कर रहा था, एक तरफ इंसान भी था, एक तरफ खुदा का बेटा यीशु मसीह भी था जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जब वो कश्ती में सवार हुए और कश्ती चल रही है, जब हमारी जिंदगी की कश्ती भी डगमगाने लगती है, लहरों से टकराने लगती है, तब हमें मसीह का नाम याद नहीं रहता, तब हम दौड़ते हैं किसी और की तरफ। एक दफा का जिक्र है कि एक और दो औरतें होती हैं, उनका घर साथ साथ होता है, और एक जो है वो जो क्रिश्चियन बहन है, दोनों क्रिश्चियन है, और जो वो है वो क्या करती है, उसका ईमान जो है वो गैर मौजूदों पर है, वो रिच है, वो उसके पास जरूरत की सारी चीजें, उसकी जरूरत की सारी चीजें उसके पास है, लेकिन जो यीशु मसीह पर ईमान रखती है, जो उसे सजदा करती है, जो उस पर ईमान रखती है, वो क्या है, कमजोर है, उसके पास कुछ नहीं। एक दिन वो दोनों गुफ्तगू करती हैं, दोनों मिलती हैं और कहती हैं कि क्या तू क्या करती है, किस खुदा को तू मानती है कि तेरे पास सब कुछ है। उस वक्त उसका ईमान कमजोर पड़ गया और तू क्या किस खुदा को मानती है कि तेरे पास सब कुछ है, हम इतनी मेहनत करते हैं तब भी हमारे पास कुछ नहीं है। वो औरत क्या करती है, उसे बाजू से पकड़ती और उस कमरे में ले जाती है। जब उसे उस कमरे में ले जाती है तो उसने एक कोना रखा हुआ है और वहां पर गैर मौजूदों की पूजा करती है। जब पूजा करती है कहती है कि मैं इस खुदा को मानती हूँ, तू किस खुदा को मानती है, कहती है उसका ईमान उसे देखकर मजबूत हो गया, और उसका ईमान और या छोटे लेवल से बड़े लेवल पर हुआ। उसके पात्रों ने उसे उसी का टच किया, उसने कहा नहीं तू मबूतों को मानती है, मैं जिंदा खुदा को मानूंगी, मैं उस खुदा पर ईमान रखूंगी जो सब कुछ हालात बदल सकता है, वाकयात बदल सकता है, जिंदगियां बदल सकता है। तो क्या मेरे हालात नहीं बदलेगा? वो क्या करती है, एक कोना लेती है और उसी तरह जिस तरह उसने उस कोने पर चीजें रखी हुई हैं, मोमबत्तियां, सारा कुछ जो भी मबूद गैर मबूदों के लिए किया जाता है वो करती है। वो आकर उसी तरह उस जगह को महसूस करती है और उस पर बाइबल रखती है, बाइबल मुकद्दस ईमान से रखती है, और रोजाना उसे 2 टाइम पढ़ना शुरू करती है। वहां पर उस जगह जो यीशु मसीह पर, यानी कि वो मज़बा पाक होता है, और जब मज़बा हम लगाते हैं तो मज़बे पर खुदा के एंजल, खुदा के फरिश्ते वहां का विजिट करते हैं। जब ने उस मज़बा को लगा लिया, वो खुदा से दुआ करना शुरू हो गई, वो ईमान में पुख्ता होती गई, मजबूत होती गई, तो वो उसके हालात दिन ब दिन बदलते गए। वो ऐसे कुछ ही दिनों में उसके पास जरूरत की सारी चीजें और उसके हालात और जिंदगी जब बदल गई तो उसके हालात डाउन पड़ गए, और वो कहने लगी कि तूने क्या किया है, क्या तो मेरे हालात ऐसे नहीं है। कहती है वो भी उसी तरह कहती है, आ मैं तुझे दिखाऊं कि मैं किस खुदा को मानती हूँ, मैं किस खुदा की पूजा करती हूँ, और मेरा खुदा क्या करने की कुदरत रखता है। उसे पकड़ ले जाती है, कहती है देख मेरा खुदा जिंदा है, और मैं जिंदा की प्रस्तिश करती हूँ, और मैं जिंदा पर ईमान रखती हूँ। हाँ, मेरा ईमान कहीं पर कमजोर होगा, जिसकी वजह से ये चीजें मुझे नहीं मिल रही थी, लेकिन जब मैंने अपना दिल अपने खुदा के लिए खोल दिया तो ये सारी चीजें मुझे इनाम में मिल गई। उसका ईमान क्या हुआ, मजबूत हो गया, वो मजबूत हो गई। उसने उस गैर मबूद के सामने नहीं झुकी, उसने मज़बा अपने जिंदा खुदा का लगाया, क्योंकि मज़बे जिंदा खुदा के लगाए जाते हैं, ना के मुर्दों के। उसने ईमान अपने जिंदा खुदा पर रखा। और मेरे अजीजों, उसने वो बरकतें हासिल कर ली जिस तरह रसूल कहते हैं हमारे ईमान को बढ़ा,
यकीनन उसने भी कहा होगा, ऐ खुदा मेरे ईमान को बढ़ा, और उसका ईमान बढ़ा और उसने पुख्ता। इसी तरह जब झील के अंदर तूफान आ गया, कश्ती डूबना शुरू हो गई, तो वहां पर जरूर शोर मचा होगा, वहां पर जरूर लोग शोर करते होंगे। तब उसके पास आकर कहते हैं कि उसे आकर खुदा यीशु मसीह को जगाते हैं कि ऐ रब्बी उठ, हमें भी बचा और खुद भी बच। तो क्या हुआ? यीशु मसीह उठे और उन्होंने हवा और पानी को डांटा, और वो उसी टाइम तूफान थम गया। और कहता है तुम इत्तिका दो, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यानी वहां पर भी रसूलों का ईमान कमजोर पड़ गया। हमारा ईमान कमजोर नहीं होना चाहिए। जब ईमान कमजोर पड़ता है तो इंसान की जिंदगी में तूफान आते हैं। जब ईमान मजबूत होता है, बेशक आंधियां, तूफान, जो कुछ मर्जी जिंदगी में हो, इंसान कभी डूबता नहीं है। जिस तरह जब पतरस की नजर दोबारा यीशु मसीह पर पड़ गई तो वो डूबने से बच गया। तो जब हमारी नजरें भी, हमारे ध्यान भी अपने मसीह पर आते हैं तो फिर हम डूबते नहीं हैं। फिर हम क्या होता है? फिर हम डूबते नहीं हैं, फिर हम जोर पाते हैं, क्योंकि ईमान ही के वसीला से इंसान बरकतों को लेता है। ईमान ही के सबब से उस 12 बरस की रोगन ने जब सब कुछ लुटा चुकी थी, जब उसके पास कुछ न रहा, हालांकि वो बहुत अमीर औरत बताई जाती है, लेकिन जब सब कुछ तबीबों को लुटा चुकी तो उसके पास कुछ नहीं बचा। फिर उसकी नजर यीशु मसीह के बेटे यीशु पर पड़ी, खुदा के बेटे यीशु पर पड़ी। तो क्या उसके ईमान ने कुव्वत को पकड़ा। उसने कहा कि मैं इसका पल्ला ही छू लूंगी तो मैं शिफा को पालूंगी। जब उसने उसके दिल में ये बात आई तो वहां पर कहते, बाइबल फरमाती है कि वहां पर बहुत सी भीड़ थी, वो कमजोर थी। वो बेशक उसे इसका बदन इतना कमजोर हो सकता है कि वो चल भी नहीं सकती थी, क्योंकि बीमार लोगों का बदन कमजोर हो जाता है। यकीनन वो कमजोर होगी, और वो उस भीड़ का भी उसने फिक्र नहीं किया कि क्या मैं वहां पर जाऊंगी तो मैं गिर पड़ूंगी, लोग मुझ पर चढ़ाएंगे, मैं पांव के नीचे रोती जाऊंगी, मुझे जख्म नहीं। उसने सिर्फ अपनी नजर जनाबे मसीह पर रखी। जब रखी तो उसने उसका पल्ला छुआ, और यीशु मसीह क्या फरमाते हैं कि मुझसे कुव्वत निकली है। और रसूल कहते हैं, शागिर्द कहते हैं कि भीड़ इतनी है, रब्बी भीड़ इतनी है, तो पता नहीं किसने नहीं क्या कहा यीशु मसीह ने। यीशु मसीह कहते हैं नहीं, मुझे किसी ने ईमान से छुआ है। ईमान बढ़ गया, ईमान मजबूत हो गया, और उसी घड़ी उसकी जिंदगी में तब्दीली आ गई, और वो उसी वक्त उसकी जिंदगी में मौत से कुर्सी किया। कुछ लोग इबादतों में जाते हैं तो कहते हैं कि मेरी फलां की जिंदगी में मौत हो गया, फलां की जिंदगी में हो गया, मेरी जिंदगी में। अपने ईमान को चेक करो, अपने आप को चेक करो। ये बात ना हो कि मैंने तुम्हें तोला और तुम कम निकले, ये ना हो कि हमारा ईमान ही कम हो। मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि हम अपने रसूलों की तरह, जिस तरह रसूलों ने कहा कि हमारे ईमान को बढ़ा, हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदा हमारे ईमान को बढ़ा। जब हम दुआ करेंगे, दिन ब दिन हम रूहानी कुव्वत से बढ़ते जाएंगे और हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा। जब ईमान मजबूत होता है तो जिंदगियों में, खानदानों में रिवाइवल आता है। जब हम ईमान से कहेंगे कि खुदा वो बरकत मुझे दे, वो मसा मुझे भी दे, जब हम जबान से और ईमान से कहेंगे तो खुदा वो मसा जो तेरे बेटे यीशु पर था, वही मसा मुझे भी चाहिए, तो अपने बच्चों को देने से कभी निकाल नहीं कर देता है, वो देने की कुदरत रहता है। क्योंकि हमारा बाप वो बाप नहीं है जो देता नहीं है,
ہمارا وہ باپ ہے جو کثرت سے دیتا ہے، جو انسان کی ضرورت سے بڑھ کر دیتا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میرے پاس آؤ اور میں تیری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ کو رکھے۔ آمین۔ آمین 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 آمین۔ پریز دی لارڈ سسٹر فوزیہ، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ سو ونڈرفل، بڑا ہی خوبصورت میسج، خاص کر فیتھ کے اوپر، یعنی کہ ایمان کے اوپر، کہ ہمیں ہر روز